Hello students. Today we are going to start our next topic in the chapter number 14, sources of energy. In previous lecture we have already studied about what is the energy, that is the capability of do some types of works. Okay, as we already know it, there are two types of sources available in the nature, conventional sources and the non-conventional sources. The conventional sources will be available for the short times of period. In 100 years there will be no sources of the conventional sources will be available in the markets. Okay, and non-conventional sources will be available for the long times of period, like sun energies or maybe hydro energy or anything else. Okay, so these types of sources will be considered as the non-conventional sources. Then we have discussed about the what is the good source of energy. How can we categorize that some types of source are the good and what are the features of the good fuels. Okay, as we already studied in these previous lectures. Okay, so in previous lecture I have already tell you that the good fuel should have the high calorific value. It should not have produced the smoke while burning. It could be also available easily, and it should be a cheap. Okay, easy to handle and safe to transport, and also it should be convenient to storage. So these are the main categories or main characteristics or main features of the good fuels. Okay, as these are the already discussed in the previous lectures. Then we have discussed what is the fossil fuels. तो जनरली द फ्यूल्स जो है जो कि ज़मीन के अंदर से निकलते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस के बाद जो फ्यूल्स बने हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फॉसाइल फ्यूल्स. तो उसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं कोल को, पेट्रोलियम को, केरोसिन, नेचुरल गैस को. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसमें आएगी, फॉसाइल फ्यूल्स के अंदर आ जाएगी. ओके, देन वी हैव डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसाइल फ्यूल. कि फॉसाइल फ्यूल जो ज़मीन में से निकल रहा है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. तो जनरली जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, लॉट ऑफ स्मोक क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. तो वो उसके मेन जो है वो क्या कहते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस है कि इसका यूज़ करने से ये चीज़ें हो सकती है, या तो फिर उसको डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के ऊपर स्टडी किया था. फॉर दैट वी हैव डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट. So what is the block diagram of thermal power plant? First we have started from the fuel that will be taken as the coal or charcoal. Okay, then we have to burn this fuel and then we have to convert it into the steam, and this steam will be goes to the pressure, and this pressure of the steam will rotate the turbine, and turbine will rotation will take a place, and then the alternator gets mixed with it, and then alternator produces or generator will be produce the electricity. Okay, तो ये टाइप का हम लोगों ने एक ब्लॉक डायग्राम देखा था. अब उसको ब्लॉक डायग्राम को हम लोग सारी चीज़ों के अंदर भी हम लोग पुटअप कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मान लो कि अभी आज हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. तो हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट है क्या जनरली. तो आप लोगों को जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है वो हाइड्रो पावर प्लांट है. जनरली उसके अंदर हम लोगों का ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है. हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर गिना जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि पानी के अंदर की जो एनर्जी है वो हम लोगों को मिलती रहेगी, वो कन्वर्जन होता रहेगा उस एनर्जी का. पर उससे पहले हम लोग दो बातें कर लेते हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो क्लियर हो जाए. तो जनरली टू टाइप्स की एनर्जी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी की थी कि भाई एक एनर्जी हमारी होती है, सपोज एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी. ओके, इसको हम कहेंगे के पी और इसको हम कहेंगे के ई. ओके, तो ये हमारी हो गई एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. में एक थोड़े से ये जो है वो कलर चेंज कर देता ताकि आप लोगों को कलर में प्रॉब्लम ना हो. सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो होती है जनरली, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है जनरली, वो कोई चीज़ जो होती है उसके अंदर अभी अभी जहाँ पर वो वहाँ पर पड़ी है, तो कोई चीज़ वहाँ पर पड़ी है तो उसके अंदर वहाँ पर पड़े पड़े भी उसके अंदर कोई एनर्जी जो होगी वो स्टोर होगी. ओके, भले ही वो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहीं पर ना कर रही हो, लेकिन वो एनर्जी उसके पास होगी ज़रूर.
ओके, मान लो कि एक पानी है, तो पानी जहां पर पड़ा है, तो पानी पड़े पड़े भी उसके अंदर एक एनर्जी होगी। जो कौन सी एनर्जी होगी? उस पड़ी हुई एनर्जी, जहां पर वो प्लेस्ड है उस जगह पर की एनर्जी जो है, जब भी इसका यूटिलाइजेशन कहीं पर नहीं हो रहा है, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है हमारा, जब भी कोई चीज जो है वो मोशन कर रही होगी और मोशन में जिस एनर्जी का यूज हो रहा होगा, कोई भी चीज को मोशन करवाने के लिए मैं जिस भी एनर्जी का यूज करूंगा, उस एनर्जी को मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको जनरली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कोई स्टेबल प्लेस की एनर्जी है, जबकि ये कोई है वो रोटेशन या फिर मोशन वाले प्लेस की एनर्जी। अगर कोई चीज, किसी चीज को मोशन करवाना है, तो किसी चीज को मोशन करवाने के लिए मैं जो एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ वो कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो ये दो एनर्जी को समझ में आ जाएगा ना, तो दो एनर्जी का हम लोगों को कन्वर्जन करना है। हाइड्रो पावर प्लांट को अंडरस्टैंड करने के लिए दो एनर्जी का कन्वर्जन करना है। पानी का कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं मैं इसके अंदर, एनर्जी का कन्वर्जन होगा इसके अंदर। ओके, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पानी में क्या चेंज हो जाएगा। पानी में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन पानी के अंदर रही हुई एनर्जी का कन्वर्जन होगा इसके अंदर। ओके, so first hydropower plant is the electricity, hydropower is the electricity generated as generated using, यहाँ पर I है, generated using the energy of falling and running water. इट इज़ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, ये हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज है, और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? रनिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग वाटर को कहाँ कहाँ से डालेंगे? तो यहाँ से रनिंग वाटर आएगा और वो क्या करेगा? टर्बाइन्स को रोटेट करेगा। हर एक चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ आ जाएगी? टर्बाइन वाली चीज़ तो आ ही जाएगी। ओके, क्योंकि मुझे कैसे भी क्या करवाना है? टर्बाइन को रोटेट करवाना है। टर्बाइन रोटेट होगा तो उसके साथ अल्टरनेटर रोटेट होगा, और अल्टरनेटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी, और फिर वो जाएगी सारी चीज़ों पर जहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? तो एक डैम और रिजर्वोयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखो, एक डैम या तो फिर एक रिजर्वोयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम इंटेक यानी कि एक गेट रखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा गेट है वो रखते हैं हम लोग। अब रिजर्वोयर यानी कि क्या? तो पानी को मैं जहां पर स्टोर करके रखूँ उसको मैं क्या कहूंगा? रिजर्वोयर कहूंगा। तो मैंने पानी को स्टोर करके यहाँ पर रखा है। अभी आप लोगों को पता है कि ये जो पानी है, अभी मैंने बोला कि कोई भी चीज यहाँ पर सिंपली पड़ी हुई होगी उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? तो इस ये पर जो रिजर्वोयर के अंदर पानी होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे ही मैं ये गेट खोलूंगा, ये इंटेक वाला जो गेट है, वो गेट यहाँ से जैसे ही मैं ओपन करूंगा, वो गेट यहाँ से ओपन होगा, तो ये जो स्टेबिलिटी से पड़ा हुआ पानी है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी यहाँ से क्या होगा? मूव होता होता निकलेगा यहाँ से। ओके, तो जैसे ही पानी मूव होगा, तो मैंने बोला था ना कि मोशन करवाने के लिए जो चीज मोशन करवा रही है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? तो अब इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप लोगों को पता ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन, कि एक एनर्जी जो है सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये हम लोगों को पता है कि भाई क्या होता है कि एक में से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है एनर्जी। पानी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पानी के अंदर रही हुई एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो टरबाइन को रोटेट करवाएगी। ओके, क्या करेगी? टरबाइंस को रोटेट करवाएगी, और टरबाइंस जो है उसके साथ जनरेटर होगा, और वो जनरेटर जो है वो ये काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो कर देगा इसको, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टरबाइन को रोटेट करवाएगी। टरबाइन जो है उसमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। कौन सी जनरेट होगी? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पर जनरेटर पे आएगी, और जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, सिंपली इतनी सी बात है। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और आप लोगों को याद होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा एक इक्वेशन हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था। अगर याद नहीं है तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये दोनों एनर्जी ने मिक्सअप करके फिर क्या बनाया, मैकेनिकल एनर्जी को बनाया। और जनरेटर ने क्या किया, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करके फिर उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस के ऊपर। अब यहाँ से आप लोग डोमेस्टिक के लिए भी वायर ले सकते हो या फिर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी वायर्स ले सकते हो। ओके, अब बचा हुआ पानी, मान लो कि पानी यहाँ पर आ गया, इसने रोटेट करवा दिया टरबाइन को। ओके, फिर पानी बच गया, फिर पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पर रिवर में आ जाएगा। अब रिवर में पड़ा हुआ पानी में फिर से, रिवर में तो पानी क्या हो जाएगा, फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायग्राम है। ओके, फिर से यहाँ पर मैं एक सिंपल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ओके फिर से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले आ जाएगा हमारा रिजर्वोयर। ओके, उसके बाद आएगा हमारा, रिजर्वोयर के बाद हमारी एनर्जी जो होगी, रिजर्वोयर में कौन सी एनर्जी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, ये भी दिख नहीं रहा है, दूसरी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें दिखेगा आप लोगों को। ये हमारा क्या है, रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब रिजर्वोयर के बाद पानी निकलेगा, फ्लो होगा। ओके, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर जाएगा कहां पर, टरबाइन में जाएगा। अब फ्लो ऑफ वाटर होगा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब टरबाइन जो है वो कहां पर जाएगा, टरबाइन जो है वो रोटेट करवाएगा साथ साथ में जनरेटर को। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस तरह से आप एक ब्लॉक डायग्राम याद रख सकते हो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आप लोग फिर इसको ड्रॉ कर सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है वो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है एग्जाम के लिए। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी रीड कर लेते हैं। मैंने समझा तो दिया है पर फिर भी हम लोग रीड करते जाते हैं और एक बार फिर से समझते जाते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज होता जाए। डैम और रिजर्वोयर इज मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट द वाटर इन द लार्ज अमाउंट। डैम और रिजर्वोयर क्यों बनाया जाता है, ताकि वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ पानी मिल सके। ओके, लार्ज अमाउंट के अंदर पानी हम लोगों को रिवर में से मिल सके। Water coming up the high speed rotates the turbine, which in turn activates a generator to produce the electricity. Some hydroelectric power plants just use a small canal to channel the river water through the turbine. ओके, क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पूरा रिजर्वर में से पूरा पानी नहीं निकाल देते हैं। ओके, ये छोटी छोटी सी पाइपलाइंस को क्रिएट करते हैं और छोटे छोटे से टरबाइन होते हैं। तो दो या तीन या फिर 8 या 10 भी टरबाइंस हो सकते हैं। ओके, तो सारे टरबाइंस में से फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फिर यूटिलाइज करके उसको मर्ज करके फिर क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पावर लाइंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इस तरह से भी हो सकता है। और ये जो पाइपलाइन है, ये जो सारी पाइपलाइन हम लोग फ्लो कर रहा है जिसके अंदर से पानी, उसको हम लोग कहेंगे पेन स्टॉक। ओके, एक पॉइंट रह गया था, पेन स्टॉक जो है वो क्या है, तो जनरली पेन स्टॉक है वो हमारी पाइपलाइन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, पेन स्टॉक जो है वो हमारी क्या है, पाइपलाइंस है जिसके अंदर से हम लोग पानी का फ्लो करवाते हैं और फ्लो करवा के कहाँ पर ले जाते हैं, टरबाइन तक ले जाते हैं। ओके, और फिर टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन के साथ जनरेटर रोटेट होता है, जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शुरू हो जाती है। ओके,
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको लिखना है, पर उसमें अंदर एक और पॉइंट भी है, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो एडवांटेजेस क्या क्या है? इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, इसको हम लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कोई एनर्जी जो है वो कन्वर्ट ही होती रहती है, तो हम लोग इस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल पूरा का पूरा कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाटर जो है हमारा सोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हम लोगों को अवेलेबल। पर ये डैम बनाने का खर्चा बहुत होता है, तो ये डिसएडवांटेजेस में भी आएगा कि डैम बनाने के लिए पूरा का पूरा अर्बनाइजेशन करवाना पड़ेगा, हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन करवाना पड़ेगा, वहां पर से हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लो कि कोई रिवर के ऊपर कोई लोग रह रहे होंगे उसके आसपास, तो पूरा डैम बनाने के लिए वो सारी जगह मुझे क्या करवानी पड़ेगी? खाली करवानी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, जबकि दिस प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड्स, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं तो वो ये डैम्स काम करते हैं उससे बचाने का। ओके, जबकि डिसएडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी बोले हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन सम सर्टेन लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ रिवर ओशन, आल्सो लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ डैम, बहुत बड़ा एरिया चाहिए। वेजिटेशन सबमर्ज्ड बिलो डैम प्रोड्यूसेस मीथेन विच लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, कई बार क्या होता है कि डैम जो होते हैं उसमें नीचे की ओर मीथेन प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ओके, पर ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, जबकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में। ओके, तो हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये सारी जगहों पर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए रिवर चाहिए और रिवर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो जनरली ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही लार्ज है। ओके, इट विल बी कॉस्टली। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, इसको बनाने का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है आज का होमवर्क के अंदर। एक्सप्लेन and draw a neat diagram of hydro power plant. अब बात करते हैं बायोमास के बारे में। अब बायोमास है क्या? जनरली बायोमास जो है, a biomass is the source of energy that is directly obtained from the plants and animals such as the wood, agricultural waste, cow dung, यानी कि गोबर। हम लोग जो भी एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स ले लेते हैं प्लांट्स में से और एनिमल्स में से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोमास के अंदर कंसिडर करेंगे। जनरली इस तरह के सोर्सेज कौन कौन है? तो इस तरह के सोर्सेज है वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, काउ डंग है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली बायोगैस के अंदर कर सकते हैं। ओके, सारी जगहों पर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि वुड का इस्तेमाल हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर किया है। तो इट प्रोड्यूसेस द बायोमास एंड कैन बी यूज्ड एज द फ्यूल फॉर द लॉन्ग टाइम। जितने प्लांट्स हम लोग ग्रो करेंगे, जितने ट्रीज हम लोग ग्रो करेंगे, उतना हम लोगों को बेनिफिशियल है। इट प्रोड्यूसेस द स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग। ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट। तो क्या करता है? एक स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है बर्निंग के साथ साथ, और इट डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, उतनी ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस टाइप का भी एक इसमें पॉइंट लिखा है। ओके, चारकोल की बात करते हैं, तो चारकोल जो है वो क्या है? तो जनरली व्हेन अ वुड इज बर्न्ड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस द चारकोल, यानी कि वुड को जब भी हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे बर्न करेंगे, ओके, तो जो बच जाएगा, ओके, जो एक्स्ट्रा रह जाएगा कचड़ा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चारकोल कह सकते हैं। चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड एज इट हैज द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, ये जो है चारकोल, वो इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही बढ़िया है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के अंदर, कोल के अंदर कर सकते हैं हम लोग। ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग, इतना ज़्यादा स्मोक जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, पर स्मोक तो प्रोड्यूस होता ही है। ओके, पर इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। काउ डंग तो आप लोगों को पता है, इट प्रोड्यूसेस द लॉट्स ऑफ स्मोक, इट डज नॉट कंप्लीटली बर्न, इट हैज़ द लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस द ऐश। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स है काउ डंग के अंदर, पर फिर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर? बायोगैस प्लांट के अंदर करेंगे।
ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में. टिल देन यू हैव टू रीड व्हाट यू हैव लर्न टुडे. ओके, आज हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट और ये सारे बायोमास के ऊपर स्टडी किया है. तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क में है, व्हाट इज बायोमास, what are the different types of sources available in बायोमास. ओके, तो इसके अंदर बायोमास को एक्सप्लेन करना है, यानी कि ये डेफिनेशन पूरी एक्सप्लेन कर देनी है, और सोर्सेज जो है उसमें वुड के बारे में लिख देना है, चारकोल के बारे में और काव डंग के बारे में. ओके, तीनों के बारे में लिखना है. ओके, आंसर के अंदर यहाँ से लिखना है, और ये सोर्सेज वाले आंसर के अंदर लिखना है वुड के बारे में, चारकोल के बारे में, और लिखना है काव डंग के बारे में. तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है. ओके, टिल देन bye bye everyone, and if you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.